Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, this one is the next chapter of reproduction unit. This is human reproduction. Okay, we have already discussed the sexual reproduction in flowering plants and right now we are going to discuss the human reproduction. मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब भी हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे प्लांट्स का या एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग का, हमेशा देना होगा कि हमें गोनेट से स्टार्ट करके गैमीट्स तक पहुंचना पड़ेगा और फिर गैमीट्स का फ्यूजन एंड देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वी शैल डिस्कस. So let us see the male reproductive system. Okay, male reproductive system located in pelvis region. The male reproductive system includes pair of testes, accessory ducts. There are so many accessory ducts which are reed testis, vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. All are together. All are collectively said to be as accessory ducts or sperm ducts. Then accessory glands such as prostate glands, bulbourethral glands, and then external genitalia. These are the different parts of male reproductive system. You are seeing in detail here the male reproductive system. The male reproductive system has two functions. एक तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, एंड सेकेंड वन इज द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल. देखिए स्पर्म का फॉर्मेशन तो होना जरूरी है ही, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा? जब वो डिपॉजिट हो जाएगा फीमेल बॉडी में, क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द फीमेल्स बॉडी. तो ये बच्चों आप ध्यान से देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं. दिस वन इज द टेस्टिस. This one is the testis. Testis comes out from the abdominal cavity of male fetus during the 7th month of embryonic development. Okay, embryonic development के 7वें महीने में अगर fetus male है तो testis comes out to lower down the temperature up to 2 to 3 degrees Celsius than the body temperature. Okay, children, and these are the ducts: reed testis, then vasa efferentia, epididymis, and then vas deferens, that is sperm duct. Finally carry the sperms toward the seminal vesicle. This one is the seminal vesicle. You are seeing seminal vesicle that stores the sperm, and it is open through the ejaculatory duct, children, and at the junction of ejaculatory duct and urethra, two pairs of glands, prostate gland and bulbourethral glands, are located. These prostate glands secreting the fructose rich viscous fluid, whitish fluid, for the vitality of sperm. Okay, this one is urethra. Urethra is lies just in the copulatory organ that is known as penis, that is made up of erectile tissue. देख रहे हैं आप, erectile tissue से बना हुआ penis, and this one is cap like structure, glans penis, and just above the glans penis a transparent membrane is present that is known as foreskin. So my dear kids, now you are seeing the elaborated diagram, clear cut diagram of male reproductive system. देखिए ध्यान से समझिएगा, यह दोनों टेस्टिस हैं, मेल गोनेट है, जो कि एक थैली या पाउच के अंदर रहते हैं बच्चों, एक हैंगिंग पाउच के अंदर, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम. स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, और उस स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के अंदर यह दोनों टेस्टिस, इन टेस्टिस के अंदर 250 तक चैम्बर्स होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. इन्हीं लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल. Male germ cell undergoes meiotic cell division to produce haploid sperm, whereas Sertoli cell provide the nourishment. After formation of spermatozoa, spermatozoa are collected through the reed testis, then vasa efferens pass towards vasa efferentia, then epididymis, and finally towards vas deferens, which carry the sperm toward the seminal vesicle. देखिए seminal vesicle तक ले जाएगा बच्चों, और सेमाइनल वेसाइकिल में ले जाने के बाद यह सेमाइनल वेसाइकिल देख रहे हैं आप, और सेमाइनल वेसाइकिल से जुड़े हुए दोनों ग्लैंड, जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये छोटा वाला, और यह बड़ा वाला आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेमाइनल वेसाइकिल के पीछे की तरफ आपको यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाई दे रहा है. ऊपर से किडनी से छन के यूरिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और जबकि नीचे से टेस्टिस से स्पर्म यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकिल में स्टोर हो रहा है. And urine and sperm both are released through this passage. This is known as urethra, and it ensures that urine and semen both are not released simultaneously. Okay, so here the seminal vesicle, and it opens through the ejaculatory duct,
And just at the junction of seminal vesicle and urethra, ejaculatory duct and urethra, two pairs of bulbourethral gland and prostate glands are located, secreting fructose-rich whitish viscous fluid for the vitality of sperm. ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज रिच whitish। यहाँ पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ्रक्टोज फीमेल्स के बॉडी में कहीं पर भी सीक्रेट नहीं हो रहा होता है बच्चों, इसीलिए फ्रक्टोज इज द occurrence of fructose is the, in the vaginal tract of female is the special test for the rape। अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं रेप के केस में कि जो विक्टिम है उसको मेडिकल मुआयना जांच के लिए ले जाया गया, मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, पीएससी ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल जांच के लिए ले जाए। तो मेडिकल जांच जो रेप का होता है कि रेप हुआ या नहीं हुआ, यह पता चलता है फ्रक्टोज की प्रेजेंस से। ध्यान दीजिएगा, यह बताना यहाँ पर बेहद जरूरी कि फ्रक्टोज फीमेल्स के बॉडी में सीक्रेट नहीं हो रहा है, और जबकि यहाँ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड, यह जो है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पर फ्रक्टोज रिच व्हाइटिश विस्कस फ्लूइड को सीक्रेट कर रहे हैं for the vitality of sperm, for the motility of sperm, and this occurrence of fructose inside the female's vaginal tract during the rapes is the signal। ओके, ये सिग्नल करता है कि हाँ रेप हुआ। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह देखिए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है एक कपुलेटरी आर्गन के अंदर रहता है। कपुलेटरी आर्गन जो इरेक्टाइल मसल का बना हुआ है बच्चों, दैट इज वेल नोन एज पेनिस, and penis that is made up of erectile tissue, I have already told you, and this cap-like structure anterior end of penis, cap-like structure that is well known as glans penis, which is covered by the transparent fold of membrane that is said to be a foreskin। तो इस तरीके से बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुल 13 पार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 13 पार्ट्स प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उनको एक सीक्वेंस में हमें बताना पड़ता है 13 पार्ट्स को। लाइक फर्स्ट वन इज टेस्टिस, सेकेंड रीड टेस्टिस, थर्ड वासा इफ्रेंसिया, फोर्थ एपिडिडाइमिस, फिफ्थ वास डेफरेंस, सिक्स सेमाइनल वेसाइकिल, सेवन इजेकुलेटरी डक्ट, 8 प्रोस्टेट ग्लैंड, 9 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 10 यूरेथ्रा, 11 पेनिस, 12 ग्लांस पेनिस, and 13 foreskin। So my dear kids, now you are seeing all the 13 parts of male reproductive system here। Okay, see this diagram also। ये तमाम डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग अलग स्लाइड्स ले रखा है ताकि आपको पूरा एकदम डिटेल में समझ में आ जाए हर एक चीज। देखिए टेस्टिस देख रहे हैं आप किस तरीके से एक थैली के अंदर लटके हुए थैली के अंदर इनफैक्ट that is scrotum, and scrotum is filled with the watery fluid that is well known as hydrocele। ध्यान दीजिएगा, स्क्रोटम के अंदर एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है बच्चों, जिसको हाइड्रोसील कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सील मीन्स कैविटी। तो हाइड्रोसील मीन्स ऐसी कैविटी जिसमें वाटरी फ्लूइड भरा हुआ है। तो चूंकि कैविटी के अंदर वो वाटरी फ्लूइड है, दैट्स व्हाई दैट फ्लूइड इज सेड टू बी एज वाटरी फ्लूइड, हाइड्रोसील। And this hydrocele prevents both the testes from external jerks and shocks। थोड़े मोड़े jerks और थोड़े मोड़े shock से यह बचाता है हमारे टेस्टिस को एक्सटर्नल jerk से, एक्सटर्नल shock से, और एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर के लिए है वहाँ पर हाइड्रोसील। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान होगा आपको, जब हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों ने पढ़ा पिछले चैप्टर में, तो हम लोगों ने जब एंथर पढ़ लिया, मतलब एंड्रोसियम पढ़ा, फिर एंथर देखा, वहां पे दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया इन विच मेल गैमेट माइक्रोस्पोर्स आर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस को देखा, हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर लगभग 250 चैम्बर्स, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और हर चैम्बर्स के अंदर 1 से लेकर 3 तक seminiferous tubules, and inside the seminiferous tubules male germ cell and Sertoli cells are located। Male germ cells undergoes meiotic cell division to produce male gamete, in fact sperm, whereas Sertoli cell providing the nourishment। तो ध्यान से देखिएगा आप, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को मैं एलेबोरेट कर रहा हूं बच्चों। इस seminiferous tubule is surrounded by a layer of epithelium on which sit the spermatogonia।
दिस डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल, अभी तक तो डिप्लॉइड सेल ही चल रहा है, दैट इज 2n, एंड सम ऑफ these cells move towards the middle of the tubule becoming primary spermatocytes, अभी भी 2n, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देन डिवाइड बाय मियोसिस, और अब यहाँ पर मियोसिस सेल डिवीजन होगा। आफ्टर फर्स्ट meiotic division, two secondary spermatocytes are formed which are haploid in nature, because we are knowing very well that meiosis first is reductional। बच्चों आपको पता है कि meiosis first reductional है, और जबकि meiosis second इक्वेशनल है। पिछले 2 सालों में मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि meiosis जो है फर्स्ट रिडक्शनल है और जबकि सेकेंड इक्वेशनल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब meiosis फर्स्ट खत्म होगा तो वहां पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे n, और इसके बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स, तीनों को ही आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब meiosis सेकेंड होगा तो meiosis सेकेंड के बाद स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे इनफैक्ट, और स्पर्मेटोसाइट्स जब बेसिकली पहले स्पर्मेटिड्स में डेवलप होंगे, और स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्मेटोजोआ, दिस इज सेड टू बी एज स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड बन गए और अब स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होना, दैट इज सेड टू बी एज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। और इसके बाद स्पर्म्स का टेस्टिस से रिलीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ये दोनों एनसीईआरटी के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अक्सर करके पूछे जाते हैं, एक तो स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होना स्पर्मियोजेनेसिस, और इसके बाद स्पर्म्स का रिलीज हो जाना, दैट इज स्पर्मिएशन। ओके, एंड नाउ यू आर सीइंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। This is, I think that this one is the most important question of this chapter, because in 10 years अगर आप 10 साल का अनसॉल्व पेपर देखें तो 10 साल में कम से कम 7 या 8 बार स्पर्म का स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आया 3 नंबर में। 2 तरीके से आता है, एक बार आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म 1.5 मार्क्स में, और 1.5 मार्क्स में शो लेबल इट्स 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, और दूसरा 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि स्पर्म का डायग्राम बना रहेगा बच्चों, ज्यादातर यही आता है, स्पर्म का डायग्राम जो आप देख रहे हैं यह बना रहेगा पेपर में, और आपसे कहेगा लेबल द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्म, 0.5 0.5 0.5 1.5 का हो गया, और फिर बोलेगा एंड डिस्कस देयर फंक्शंस आल्सो, तो 0.5 0.5 0.5, तो 3 मार्क्स का ये एक तरीके से कंफर्म क्वेश्चन देख रहे हैं आप बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द मेल गैमेट कंसिस्टिंग हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, 4 इसके पार्ट देख रहे हैं आप, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। लेकिन जब इंपॉर्टेंट पार्ट को पूछा जाएगा तो आप नेक मत लिखिएगा बच्चों, क्योंकि नेक पे नंबर नहीं मिलता है, ब्लूप्रिंट्स में नेक पे नंबर नहीं रहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बहरहाल आप 4 पार्ट देख रहे हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, और जबकि हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज वेल नोन एज एक्रोसोम। एक्रोसोम इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, बिकॉज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है तो वहां पर एक्रोसोम जो है एक्रोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बेसिकली लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, जो ओवम की दीवार को रप्चर करता है जिससे स्पर्म का हेड अंदर पेनिट्रेट कर सके, क्योंकि एक्रोसोम के पास गोल्गी बॉडीज होते हैं, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में यह लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करता है। इट आल्सो सीक्रेट्स अ फैक्टर फर्टिलिजिन which ensures that one ovum is fertilized by only one sperm. Okay, and head consisting the haploid nucleus, 23 chromosomes, that is the genetic material, and here centrioles you are seeing also, because this one is animal cell, and neck, and then important part that is middle piece. Middle piece comprises numerous mitochondria, बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होते हैं, to provide energy, because you know that mitochondria are the powerhouse of the cell, providing energy for the motility of sperm, and this one is the plasma membrane or cell membrane, because this one is animal cell, and here you are seeing the long tail, ठीक है, to vibrate the tail, sperms being motile, sperms की motility के लिए मदद करता है ये tail। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये हेड, बॉडी और टेल, हेड के अंदर 23 क्रोमोसोम, बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, और जबकि यह माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही एनर्जी मिलती है, जिससे और टेल के थ्रू यह मोटाइल हो जाता है और स्विम करके फीमेल्स के सर्विक्स यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है,
जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। आपने देखा यहाँ पर अगर मेजर पार्ट, मैंने आपसे पीछे बताया था कि मेजर पार्ट जब पूछा जाता है तो नेक को नहीं बताया जाता है। मेजर पार्ट आप 3 यही बताएंगे जिसपे नंबर मिलना है, हेड, उसके बाद सेकंड मिडिल पीस और तीसरा टेल। हेड के पास न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियस भी यहाँ पे बता सकते थे, लेकिन हेड के अंदर न्यूक्लियस है, इसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जबकि हेड के ऊपर हेलमेट लाइक एक स्ट्रक्चर है, दैट इज एक्रोसोम, रिट्रीट करने में मदद कर रहा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन द मिडिल पीस containing numerous mitochondria providing energy, and then the long tail, that is locomotor region of sperm. Let us discuss the female reproductive system, children. Similarly, female reproductive system का gonad ovaries हो जाएंगे. Ovaries are located in either side of abdominal cavities of female, which are producing the female gamete, that is ovum or egg cell, okay, and secrete the female sex hormone also, that is estrogen and progesterone. एसेसरी डक्ट्स यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना होंगे। इसका एक इलेबोरेटेड डायग्राम में दिखाऊंगा, ये देखिए आप ध्यान से। दीज आर द ओवरीज एंड दिस वन इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पोर्शन है, टर्मिनल पोर्शन है, यह एक फिम्बरी है, फिम्बरी या ओविडुकल फनेल विच रिसीव्स द ओवा। ये ओवम को रिसीव करने के लिए on the 14th day of menstrual cycle, that is the ovulatory period, और वहां पे ओवम को यह रिसीव करता है बच्चों। और यह फैलोपियन ट्यूब 3 भागों में बटा हुआ, एम्पुला, ये इनफंडिबुलम, इम्पुला और इस्थमस, और एम्पुला और इस्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, that is एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। This one is pear-shaped uterus protected by 3 membrane, 3 protective layers. Outer one is known as perimetrium. Second, this is muscular fold, that is called as myometrium, and the inner one is said to be as endometrium. यही एंडोमेट्रियम की वाल के ब्रोकन पीसेस ही ब्लड के साथ में रिलीज होते हैं मेंसेस के रूप में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। And this one is cervix or cervical canal, which opens in the broader chamber, that is said to be as vagina, and vagina opens through the external opening, that is said to be as vaginal orifice. So you are seeing here the female reproductive system along with external genitalia. अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें बच्चों हम, तो वल्बा, हाइमेन, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, ये सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएंगे, जिनको मैं आगे बताऊंगा। बट फर्स्टली सी द ओवरीज, व्हिच आर फीमेल गोनेड, दे प्रोड्यूस एग, जिसको ओवा भी बोलते हैं या ओवम भी बोलते हैं इंडिविजुअली, एंड एवरी फीमेल इज बॉर्न विद अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग्स। दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फैलोपियन ट्यूब मैंने बताया था आपको, एक टनल्स होते हैं जो कि इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस में बटे होते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच आर वल्बा, विच रन्स फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। प्यूबिक एरिया से लेके रेक्टम तक, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्यूबिक एरिया से रेक्टम तक जो है रन करता है वल्बा, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहरी मस्कुलर फोल्ड्स हैं। और जबकि वेजाइनल ओरिफाइस को गार्ड करने वाले बाहरी मस्कुलर फोल्ड को बोलते हैं लेबिया मेजरा, विच आर ग्रेटर लिप्स, एंड इनर साइड से जो मस्कुलर फोल्ड्स गार्ड कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया माइनरा, विच आर लेसर लिप्स। ठीक है, लेसर लिप्स होते हैं, दो अलग अलग नाम दिया गया, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा। ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं इंटरकोर्स के समय में। इंटरकोर्स के समय में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं बच्चों। यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, लेबिया मेजरा और लेबिया माइनरा के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कि लुब्रिकेशन का काम कर रहे होते हैं। और एक ऊपर से, ये देखिए डायग्राम, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक मसल फोल्ड, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक मस्कुलर फोल्ड होगा, दैट इज सेड टू बी एज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज द साइट ऑफ एक्साइटमेंट इन फीमेल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए जिम्मेदार होता है क्लाइटोरिस बच्चों। तो इस तरीके से आपने यह एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी देख लिया, विच आर वल्बा, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा एंड क्लाइटोरिस। लेट अस डिस्कस द oogenesis। बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज बीइंग स्टार्टेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, but oogenesis is started during the embryonic stage of female, means before birth, and being arrested at the end of meiosis first, and then again started at the age of puberty, that is restartment of oogenesis with the startment of menstrual cycle. So oogenesis you are seeing, oogoनियम बन जाते हैं, और oogoनियम बनने के बाद जब फीमेल 13-14 साल की हो जाती है, तब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा,
और प्राइमरी oocytes में अब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocytes बनेंगे एन और एन, लेकिन एक एन लार्जर होगा और दूसरा स्मॉलर वाले को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका फंक्शन अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मानते हैं कि यह नरिशमेंट का काम कर रहा होता है। और फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, ओवुलेशन उसी समय में होगा, मियोसिस क्योंकि वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी ड्यू टू द हार्मोनल एक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी विच इज द peculiar feature of primates, man, apes and monkey, and then ovulation takes place and ovum is being released। अभी पीछे डायग्राम में आपने देखा भी था कि ओवम को किस तरीके से ओविड्यूकल फनेल या फिमरी रिसीव करते हैं बच्चों। तो सी हियर what happened before birth, what happened after puberty। Before birth oogonium and mitosis takes place, primary oocytes are being produced, and at puberty meiosis continues, then secondary oocytes are formed, and बाकी तीनों तो डिजेनरेटिव हो जाते हैं जैसे प्लांट्स में आपने देखा था। और फिर यहाँ पर ओवुलेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और जिससे एन रिलीज होगा जो कि स्पर्म से फ्यूज होता है बच्चों। तो इसके लिए हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना पड़ेगा, जो कि पेक्यूलियर फीचर है ह्यूमन बीइंग का या मंकी का या एप्स का, आप कह सकते हैं प्राइमेट्स का, जो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। यह एक 28 दिन की साइकिल होती है बच्चों। दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 28 days, but it is considered as monthly cycle, okay, and it consists the 4 phases and plus minus 4 days। यह बता रहा है कि 4 दिन तक का फ्लक्चुएशन इसमें किसी भी डेज में हो सकता है। तो यह देखिए द फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेट, बेसिकली फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, लुटियल फेज, और फिर से आ जाएगा वही मेंस्ट्रुएशन, जो कि तीसरे से 5वें दिन तक होता है। एक यहाँ देखिए फॉलिकुलर फेज, इस समय एफएसएच का लेवल हाई हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड एंड फाइनली मैच्योर ग्रेपियन फॉलिकल आर फॉर्म्ड। On 14th day ovulation takes place, in which mature graphian follicle ruptures and ovum is being released. Then from 15 to 28 days of menstrual cycle, the remaining portion of mature graphian follicle convert into carpus luteum। अब यह एक एंडोक्राइनल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, that is said to be as carpus luteum, और carpus luteum secreting progesterone hormone which are responsible for the proliferation of endometrium wall of uterus। जो एंडोमेट्रियम की वाल ब्रोकन पीसेस के रूप में रिलीज हुई थी मेंसेस के रूप में, वो फिर से यहाँ पर बना देगा 28 डेज तक। 29th डेज को पहला दिन, 30th डेज को दूसरा दिन कहेंगे, इसीलिए एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा, और 31st डे वाले दिन तीसरा दिन होगा, और तीसरे से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिसमें मेंसेस फिर से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज द ब्रोकन पीसेज ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस along with blood, that is so called as menses। So you are seeing here the ray diagram also। Menstruation occurs from 3rd to 5th days, in which the broken pieces of endometrium wall is being released in the form of menses through the vaginal orifice। Second one is the follicular phase, in which primary, secondary, tertiary and mature graphian follicle are formed, and then FSH and LH reaches at its peak, and then ovulation takes place on the 14 days of menstrual cycle, that is said to be as ovulatory phase। Ovum is being released, and finally the mature graphian follicle, the remaining portion of mature graphian follicle is being converted into the carpus luteum, that is the endocrinal part, which is secreting the progesterone you are seeing, and progesterone hormone will just replenish the endometrium wall of uterus। In this way again it is being reformed, proliferation, and then after 2 days means 29 and 30, then on the 31st, that is the 3rd day of menstrual cycle, again menstruation takes place and menses is released। It is the continuous process through menarche to menopause। When menstruation occurs firstly, it is said to be as menarche at the age of 13 or 14, but when it occurs lastly, it is said to be as menopause at the age of 45। So children, after menstrual cycle, let us discuss about fertilization। मैंने बताया भी था आपको पिछले चैप्टर में भी कि मेल और गैमीट के फॉर्मेशन, और अगर उनको पहुंचना है फीमेल गैमीट के पास तक, तो पहुंच जाने के बाद अब जो अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन का होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। एंड इन ह्यूमन बीइंग the site is very important। The site of fertilization is ampullary stomach junction
हर साल पूछा जाता है बच्चों कि फर्टिलाइजेशन का साइट कहाँ पे होता है 1 नंबर में। तो आप जानते रहिए कि एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जंक्शन है दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। I have already told you about fertilization. And after fertilization, zygote undergoes mitotic division that is known as cleavage. It is again very important chapter. Okay, it begins about 30 hours after the fertilization. लगभग 1 दिन के बाद यह शुरू होता है in which zygote undergoes mitotic division to form 2-celled, 4-celled, 8-celled and 16-celled structure. 8 to 16 celled structures are said to be as blastomeres, and such 16 to 32 blastomere cells stages are said to be as marula. Marula continues to divide and becomes into blastocyst, and then blastocyst enters inside the uterus, and finally the outer layer is said to be as trophoblast, whereas the inner layer is said to be as inner cell mass. तो ये क्लीवेज आप देख रहे हैं किस तरीके से क्लीवेज होगा बच्चों, जिसमें कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे और ब्लास्टोमियर्स के बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और तब ब्लास्टोसिस्ट की बाहर वाली दीवार जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम वॉल के साथ इंटरडिजिटेट हो जाएगी अम्बिलाइकल कार्ड के साथ में, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव होगा, और जबकि अंदर जो इनर सेल मास है दैट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. ओके, सो द इम्प्लांटेशन, the penetration of blastocyst into the superficial layer of the endometrium. endometrium दीवार में धस जाना blastocyst का, that is implantation. और implantation वाले डेज को हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है बच्चों. तो it takes about 6 days 7 days and is completed about the 11 days after the fertilization. Okay, so after implantation pregnancy is started. Pregnancy, the events that occur from fertilization until the infant is born, that is conceptus, the developing of spring. gestation period कहा जाता है उस एम्ब्रियनिक पीरियड को जो 270 से 280 दिन का होता है, and it is approximately 9 months children. Okay, so this one is the embryonic development and pregnancy, and this one is gestation. Basically gestation is the term used for embryonic development because human female is viviparous, gives the completely young ones, completely mature young ones. Okay, so gestation period is required in which embryonic development takes place. यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, embryonic development होता है बच्चों. बेबी gestation period देखिए 28 weeks extremely premature, 32 weeks very premature, 37 weeks premature and 40 weeks normal. ओके, तो यह एक प्रेगनेंसी के बाद या गेस्टेशन पीरियड का बेसिकली एक चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि बेबी के गेस्टेशन पीरियड को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गेस्टेशन हो रहा है. एंड नाउ सी द लास्ट टॉपिक दैट इज पार्टुरिशन. पार्टुरिशन इज द एक्ट टू गिव डिलीवरी टू बेबी. ओके, दिस इज द एक्ट टू गिव द डिलीवरी टू बेबी इज नोन एज पार्टुरिशन. Just after completion of gestation period, basically maternal pituitary secrete a hormone oxytocin that is known as birth hormone, and oxytocin creates the labor pain by creating the creating the pain in the uterine muscles, contraction in the uterine muscles, and due to this contraction baby just push towards the cervix or cervical canal, which makes the parturition easier. Okay, so labor pain is necessary here because contraction of labor occurs intermittently to avoid stopping blood flow through the placenta, ताकि blood flow avoid हो सके और फिर इस तरीके से parturition होगा. और इसको बोलते हैं fetal ejection reflex, और fetal ejection reflex वहां पे create होगा जिसके थ्रू बेबी आगे की तरफ पुश होगा. At the same time, placenta secretes very important hormone that is relaxin, which is responsible to relax the uterine muscles. जो यूट्राइन मसल्स को रिलैक्स कर देगा और बेबी का बर्थ आसानी से हो जाएगा बच्चों. दैट इज बेसिकली पार्टुरिशन. सो माय डियर किड्स, in this way we have seen the human reproduction also. Okay, I will also send the video of reproductive health. Okay, so don't be panic about the syllabus of half yearly. I am just sharing PDF of all the chapters, video of all the chapters and materials related to all the chapters for your better preparation children. Thank you very much.